देखिए, सबसे पहले पावर शेयरिंग पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। Power sharing, what do you mean by power sharing? What do you mean by power sharing? When some concentrated form of power is shared among different groups or organization or the level of government or the parts of government at different levels, so that is called power sharing. इस चैप्टर में दो इंसिडेंट्स हैं. फर्स्ट इज द श्रीलंकन इंसिडेंट एंड द सेकेंड वन इज द बेल्जियन इंसिडेंट. श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म हुई और वहाँ सिविल वॉर हुआ. वाई? बिकॉज देयर वर टू ग्रुप्स, सिन्हालीज एंड द सेकेंड वन इज द तमिलियंस. They were fighting with each other because of the imposition of Sinhala language as the official language of Sri Lanka. So this particular thing did not went well with the Tamilians, and they fought against the Sinhalese to capture some power. But at the end what happened, Sinhalese group were exploiting the Tamilians, and Tamilians were forming their different political organizations. तमिल एलम अगर आपको याद है तो, फॉर इन्फोर्सिंग देयर ओन डिमांड्स. बट एट द लास्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1980s, द civil war happened in between Sinhalese and the Sinhalese and the Tamilians, and this way their majoritarianism turned into civil war. But on the other hand, what happened with Belgian, they also had different linguistic groups. For example, they had French, they had Dutch, and they had Germans. Okay, so they also had different composition in their territory. But what they brought a kind of solution for that. They shared power among different groups. The composition of Belgian, अगर आपको याद होगा, बेल्जियम में पावर की शेयरिंग कैसे हुई थी. द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज द ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में क्या था कि वैसे तो वहाँ पर फ्रेंच डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे, अप्रॉक्सीमेटली 59% एज फार एज आई कैन रिकॉल. डच स्पीकिंग पीपल रहते थे बेल्जियम में, और 40% के अगल बगल इट वॉज फ्रेंच. बट ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन था. 80% वर ऑफ जर्मन स्पीकिंग एंड रेस्ट 80% वॉज द फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% वॉज द डच. तो उन लोगों ने एक तरकीब सोची कि उन लोगों ने एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि मिनिस्टर्स के जो पोस्ट होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे इन बिटवीन द डच स्पीकिंग पीपल एंड दी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. और एक उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन किया, ठीक है. फिर उन्होंने ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया कि वहाँ पे टोटली अलग गवर्नमेंट ही होगी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, और उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप से, और वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप से, ठीक है. सो दिस वाज द स्टोरी which NCERT has tried to convey by the form of two different stories. Now the case of India, what is happening in India, that we have to study. India is a federal nation. देखिए दो तीन बातें हैं इंडिया में. India is a federal country. I think I am audible now. इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, पहली बात तो ये. उसके बाद इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर इलेक्टोरल कंपटीशन इज देयर. इलेक्टोरल कंपटीशन का क्या मतलब होता है? देयर विल बी डिफरेंट पार्टीज, different political parties contesting to form government. Am I audible now? There will be different
there will be different political parties for contesting election. India is a federal nation. That simply means that the power is shared in between two levels of the government. One is the central level and the other one is the state level, and that power is derived from the constitution itself. ठीक है, ऐसा नहीं कि delegation of power होगा. There is no delegation. इसका क्या मतलब होता है कि सेंटर जब चाहे तो जितना पावर दे दिया और जब चाहे तो वो पावर एक्सट्रैक्ट कर लिया. दिस इज नॉट द केस विथ इंडिया. ठीक है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म में पढ़ना भी है कि व्हाई इंडिया इज अ फेडरल नेशन. देयर आर सो मेनी फीचर्स because of which we can say that the India is a federal nation. Second, it has the electoral competition. There are numeral n number of parties, local parties, national parties, state level parties are there, regional parties are there, which contest for the formation of the government in their respective elections. ठीक है, सेंट्रल पार्टी जब कोई भी इलेक्शन होता है तो वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है. उसके बाद और रीजनल पार्टीज होते हैं तो वो पर्टिकुलर रीजन से अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है. सो दे वी हैव इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट थिंग, वी हैव अ प्रोसीजर ऑफ चेक एंड बैलेंस. We have a procedure of check and balance. What is the meaning of this check and balance? We have three organs of government. ठीक है, we have three organs of government. What are those organs? Tell me, what are those organs? Those three organs of government. हमारे पास तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के. थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट आर दोज थ्री ऑर्गन्स? वन इज द लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. These are the three organs of government and the power is shared in between them. इसका क्या मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव का काम है लॉ को फॉर्म करना. जो अलग अलग लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं उसको फॉर्म करना लेजिस्लेटिव का काम है. एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना. और जुडिशरी का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन में या फिर फॉर्मेशन ऑफ लॉ में अगर किसी तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन का प्रयोग किया जाता है या फिर लॉ खुद में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन का यूज किया जाता है, then comes the role of the judiciary. It will control legislatives as well as executive, and it will enforce the common rights of the citizen. ठीक है, जुडिशरी का काम होता है कि ये सिटीजन्स के राइट्स को इन्फोर्स करती है. फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट अगर अच्छे से अबाइड नहीं हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. ठीक है, तो देखिए, वी हैव चेक एंड बैलेंस. ठीक है, वी हैव फेडरलिज्म इन आवर नेशन, वी हैव इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. Then one more thing that we have is we have many social groups. सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? वैसे ग्रुप्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिलीजन, वी हैव लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, वी हैव कास्ट्स, we have ethnicity, we have, let us say, different races. So we have accommodated everything in our society. Okay, देखिए, हमारे पास फेडरलिज्म है, हमारे पास चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, हमारे पास इलेक्टोरल कंपटीशन है जिस हिसाब से वी हैव सो मैनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपोजिशन पार्टी. ठीक है, वी हैव along with political party pressure group,
as well as movements. Now I think I am audible. ठीक है, तो हमने पावर को शेयर कर दिया है इन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन से ऑर्गन है हमारे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमने पावर को शेयर कर दिया है. एक पर्टिकुलर पावर है. पावर कहाँ पर है हमारे पास? वेयर इज द पावर? पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एंड पीपल का एस्पिरेशन कौन शो करता है? दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. डन. सो हमने पावर को डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे शेयर कर लिया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पे शेयर कर लिया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट में शेयर कर लिया, एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर कर लिया, यानी रिलीजन है ना, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कास्ट, एथनिसिटी, रेस. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को कैसे शेयर किया हमने? पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव गिवन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना. Any particular candidate can take the name of the party and then contest election. If he or she wins, then he will be directly sent to the parliament for the legislating purpose. ठीक है. So in this way we have shared power with political parties. Pressure groups का क्या power होता है? Different types of pressure groups होते हैं, जैसे कि women organization होती है ना, minority rights commission होता है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कमीशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कमीशंस होते हैं. दे आर डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स विच प्रेशराइजेज द गवर्नमेंट टू टेक एनी पर्टिकुलर एक्शन इन देयर फेवर, है ना. वी हैव सो मैनी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दे नीड स्पेशल अटेंशन बाय द गवर्नमेंट. तो स्पेशल अटेंशन, कौन कौन से डिमांड्स हैं उनके, कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स है, उसको हाईलाइट करने का काम ये प्रेशर ग्रुप करते हैं. सो वी हैव गिवन पावर. Why power? Because they have a say in the government setup. Whatsoever they will pressurize, the government will be liable to take those decisions. फिर movement, अभी हमने किसान मूवमेंट चल रहा है, so they have particular power. They own some power with them. How? Because the government is time to time pressurized by the demands of the farmers. Now am I audible? Can you hear me? ओके. सो मूवमेंट को ऐसे पावर दे दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को पावर दे दिया, सोशल ग्रुप, रिलीजन के पास क्या पावर है? डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन पर्सनल लॉज. अगर आपको पता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है. सो डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन डिफरेंट पर्सनल लॉज. और रिलीजन चाहे तो वो किसी भी तरह की चीज़ों को, रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो होते हैं, वो किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी को या फिर प्रैक्टिस को प्रीच कर सकते हैं. वो किसी भी आइडियोलॉजी को प्रोफेस कर सकते हैं, या फिर दे कैन मोटिवेट अदर्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, बट द कंडीशन इज दे कैन नॉट forcibly or they cannot impose the kind of conversion on the people. So कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस तब तक वैलिड है इंडिया में जब तक वो हेल्थ को या फिर उसके पर्सनल आइडेंटिटी को वो प्रॉब्लम में नहीं डाले, तब तक किसी भी तरह का रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउड है इंडिया में. सो दिस इज द केस. फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के पास पावर है. वी हैव मेड सो मैनी स्टेट्स ऑन द लाइन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. आंध्र प्रदेश आंध्रा बोलने वाले लोगों ने बनाया, तमिलनाडु तमिलियंस का है, पंजाब पंजाबी बोलने वाले लोगों ने बनाया, हरियाणा में हिंदी लोग बोलते हैं, गुजरात बना गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए. ठीक है, गेटिंग. सो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स ऑल्सो हैव सम पावर. कास्ट के पास क्या पावर है? वी हैव डिफरेंट कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. नाउअडेज देयर इज कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. मतलब कि वी हैव सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज विच आर बेस्ड अपॉन सम पर्टिकुलर कास्ट. अगर आपको पता होगा आरजेडी, these are the parties which belongs to the backward caste और माइनॉरिटी कास्ट. बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, ये सब माइनॉरिटी कास्ट को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल JDU
है ना, जनता दल यूनाइटेड, ये सारे कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, सो दे ऑल्सो ओन सम काइंड ऑफ पावर। एथनिसिटी के पास भी पावर है। एथनिसिटी का मतलब होता है देयर इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म। रेशियल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल रेशियल ग्रुप्स ऐसे बोल तो नहीं सकते, बट कम्युनिटी, जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स के पास स्पेशल पावर है हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, है ना, तो दे हैव ओन फंडामेंटल, दे हैव देयर ओन फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज ऑल द शेयरिंग ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। मैंने आपको ये भी समझा दिया श्रीलंका में पावर का शेयरिंग कैसे हुआ, बेल्जियम में कैसे हुआ और इंडिया में कैसे हो रहा है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन बिटवीन बेल्जियम एंड द श्रीलंकन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग? कैन यू आइडेंटिफाई कि बेल्जियम में जिस तरह से पावर का शेयरिंग हुआ था, अगर आपको याद होगा बेल्जियम में पावर का शेयरिंग कैसे हुआ था, एथनिसिटी के बेस्ड पर, लैंग्वेज के बेस्ड पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे वहां पर, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, सो वी हैव आल्सो शेयर्ड आवर पावर विद डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक, जैसे कि वी हैव फॉर्म्ड सो मेनी स्टेट्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, so that is also an example or the connectivity in between India and the Belgium. So this you can understand by these two models. तो यहाँ तक clear है, I think power sharing is this much done. Okay.